Good morning, students. Now let us do some numericals related to second law of motion. Beta. Example 9.1. A constant force acts on an object of mass 5 kg. Look here, beta. Question example 9.1. A constant force acts on an object of mass is 5 kg. Mass कितना है? 5 kg. For 2 seconds means time equal to 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. अगर 3 मीटर से 7 होगी, it means u equal to 3 meter per second, v equal to 7 meter per second. Then find the magnitude of the applied force. Means force you have to calculate. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? चलो वो हिस्सा बाद का है. इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. Firstly, we are given mass T, U, V. We have to calculate F, and we know F equal to ma, and A equal to V minus U upon T. So let us substitute the values. What is m? 5 into 7 minus 3 upon time is 2. So 5 into 4 by 2. 10. The unit of force is Newton. Now, what will be the final velocity if the duration of time is 5 seconds? Means force will remain same. आपका force 10 Newton रहेगा. V कितनी होगी? Means final velocity कितनी होगी? अगर यही force लगता रहा, लेकिन time 2 सेकेंड की जगह कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड. Now इसके सेकेंड केस में आपके पास F इक्वल टू कितना है? 10 न्यूटन. टाइम कितना है? 5 सेकेंड. यू आपका वही है 3 मीटर पर सेकेंड, और वी आपको कैलकुलेट करना है. मास वही है 5 kg. नाउ लेट अस यूज सेम फॉर्मूला. एफ इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. व्हाट इज एफ? 10 इक्वल टू मास इज 5. वी हैव टू कैलकुलेट माइनस यू वाज 3 upon time is 5. Means if we keep on applying the force for 5 seconds, so 5 cancels with 5, v minus 3 equal to 10, or v equal to 10 plus 3 equal to 13 meter per second. So the final velocity will become 13 meter per second. Now come to the next question. Example 9.2. Which would require a greater force? Accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second. किसको ज्यादा फोर्स लगेगा बेटा? पहले में दे रखा है मास 2 kg, मास है 2 kg, और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरी साइड में मास है 4 kg. 4 kg आपका मास है, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किसको फोर्स ज्यादा लगेगा मूव करने के लिए? तो F वी नो F इक्वल टू एम ए. हेयर आल्सो F इक्वल टू एम ए. व्हाट इज m हेयर? 2 इंटू a इज 5, 10 न्यूटन. मीन्स इधर तो लगेगा 10 न्यूटन. अब इधर आ जाओ. m इज 4 इंटू a इज 2, 8 न्यूटन. सो द फर्स्ट बॉडी विल रिक्वायर more force to move from its position. Next है, a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour. Example 9.3. बेटा ध्यान से समझना, कोई मुश्किल नहीं है. सेकेंड लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में. इसमें इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड आएंगे, और बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं. यू विल डेफिनेटली गेट एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल फ्रॉम सेकंड लॉ मोशन. लिसन है, अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर. मींस मूव कर रही है. u इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर है ये. इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप. टाइम 4 सेकेंड.
आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगाने के बाद कितने सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे उसको रुकने के लिए। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या बनी, v इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोल देना 4 सेकंड्स टू स्टॉप मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार, मीन्स फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट, F we have to calculate if the mass along with the passenger is 1000 kg, means mass is 1000 kg. Now look here, this is in kilometer per hour. Firstly we have to change it in meter per second because we are having a time in second. To change we have to multiply 5 by 18. meter per second. Now we know that F equal to ma. Firstly we will calculate A. A is V minus 2. Either calculate separately or you can use it in the formula. ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, पहले आप A कैलकुलेट कर लो, फिर फोर्स में उस A का यूज कर दो, वो तरीका भी ठीक है और जो मैं करवा रही हूँ वो भी ठीक है। तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, this is equal to what is m, 1000 into what is v, 0 minus u, 30 upon t, 4 seconds. So it will become minus 3, 1, 2, 3, 4, because 0 minus 30 is minus 30 upon 4 minus 4 7 is 28, 4 5 is 20, माइनस 7500 न्यूटन। अब ये आंसर आपका माइनस में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माइनस? बेटा जब किसी चीज को रोकते हैं तो ऑपोजिट साइड से फोर्स लगाना पड़ता है जिससे कि वो चीज रुक जाए। अगर आप उसी साइड में फोर्स लगाओगे तो वो चीज तो चलती जाएगी। अगर गाड़ी ऐसे जा रही है इसको रोकना तो आपको फोर्स इस साइड से लगाना पड़ेगा ना इसको रोकने के लिए। सिंस द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो द फोर्स इज negative. This negative sign shows the direction in which the force is acting, not the force is negative. Force negative नहीं है बल्कि direction बता रहे कि जिस साइड में force लग रहा है। Now this was all about example 9.3. Now let us come to example 9.4. This was example 9.3. Now come to example 9.4. A force of 5 Newton gives a mass m1, an acceleration of 10 meter per second square, and a mass m2, an acceleration of 20 meter per second square. ये बोलते हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, मास कितना है m1, एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस में फोर्स कितना है 5 न्यूटन, मास है m2, एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट acceleration would it give if both the masses were tied together? ये बोलते हैं अगर दोनों मास को इकट्ठा कर दिया जाए तो कितनी एक्सेलरेशन लगेगी। बेटा पहले तो आपको क्या करना है, पहले मास निकालना है दोनों का कितना है। अब वी नो F इक्वल टू एम में, ठीक है, तो F इक्वल टू एम में हमें m निकालना है। फोर्स कितना है 5 अपॉन एक्सेलरेशन कितनी है 10, तो m कितना है 1/2 kg। ये तो क्वेश्चन इज इन kg नहीं लिखा बट इट विल बी इन kg बेटा। ये मीटर पर सेकेंड मीटर है, सभी kg में, मीटर में m के सिस्टम है तो kg में चलेगा। तो इधर भी F इक्वल टू m में F इज 5 इक्वल टू m2 इंटू A इज 20, तो m2 इक्वल टू 5/20 मीन्स 1/4 इक्वल टू m2। अब क्वेश्चन ये था आपका कि इफ बोथ द मासेस वर टाइड, अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए अब उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी। अब दोनों मास को इकट्ठा करो, ये m2 है, ये आपका m1 है।
इधर 2 लिख लो, चलिए तो फॉर्मूले में इधर 2 आ गया, तो m1 प्लस m2, m1 इज 1/2 प्लस 1/4, 4 LCM, 2 plus 1, 3/4 kg. F equal to ME, F will remain same 5 equal to mass 3/4 into A we have to calculate. So A equal to 4, 5 4 is 20 upon 3. So A equal to 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बोलता है अगर दोनों को इकट्ठा बांध दिया जाए तो उनकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो हैवी हो जाएंगे। पहले इसकी कितनी थी 10, इसकी कितनी थी 20, दोनों बॉडी हल्की थी, एक ½ kg की थी और दूसरी 1/4 kg की। लेकिन अब जब दोनों को मिला दिए, दोनों का वजन ज्यादा हो गया ना, वेट ज्यादा हो गया, तो जब उसका मीन्स मास ज्यादा हो गया, वेट नहीं इसको मास कंसिडर करेंगे बेटा, तो मास ज्यादा हो गया तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितनी होगी, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।